परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत का सबसे खूबसूरत और समृद्ध राज्य। जितनी खूबसूरत यहाँ की धरती, उतनी ही खूबसूरत है यहाँ की संस्कृति। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक और सांस्कृतिक खूबसूरती के अलावा भी एक अनमोल खजाना है। वो है भगवान बुद्ध के ज्ञान और उनके दर्शन पर चलने वाले बुद्धिजीवियों, धर्मावलंबियों का खजाना। पूरे अरुणाचल प्रदेश में भगवान बुद्ध का ज्ञान फैला है और उनके दिखाए रास्तों, सिद्धांतों पर चलकर लोग मानव जीवन का असली मतलब समझ रहे हैं और मुक्ति का ज्ञान पा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको रूबरू कराएंगे अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खेमांग जिले में फैले भगवान बुद्ध के ज्ञान पुंज से, उनके सिद्धांतों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं से। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खेमांग जिले में फैले भगवान बुद्ध के ज्ञान का अनमोल खजाना तब सामने आया जब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बौद्ध धर्मगुरुओं में से एक परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने यहाँ दूर दराज के गांव का दौरा किया। ये है पश्चिम खेमांग जिले का खलकतांग इलाका। खलकतांग पहुंचना और यहाँ के गांव-गांव का दौरा करना आसान नहीं, लेकिन यहाँ के बौद्ध धर्मावलंबियों से मिलने और उनका जीवन सफल बनाने के लिए परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे मुश्किल राहों से होकर भी यहाँ पहुंचे। खलकतांग में परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने गांव-गांव घूमकर धर्म ज्ञान दिया, पूजा पाठ किया और श्रद्धालुओं का जीवन आशीर्वाद देकर सफल किया। खलकतांग दौरे में और क्या हुआ खास, आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Just Namaste and a very happy new year to all the viewers. 8th of January 2011, Saturday, 4th lunar day of 11th month. It is a favorable day for those who are born under animal sign ox, tiger and rabbit. The elemental combination is earth-water, which is an auspicious combination which can lead to youthfulness, which indicates happiness, joy, and are good for dressing up, doing amusements, festivities, and feast. A very good day for construction of house and renovations, road and drainage constructions, appeasing to the wild god. Plantation of flowers and trees also are good on this day. Starting of new home is also a good day. However, it is not a good day to wage war or going to war, as it is Maginamgo. And this day is especially bad for those people who are born under the animal sign pig and mouse, and not a favorable day for making new clothes, getting promoted, or selling of property. Pomdong or empty wash is at the east direction, so important activities should not be done while facing east.
9th of January 2011, Sunday, and 5th of lunar day of the 11th month. And the elemental combination is fire water, which is very inauspicious and which has ability to bring death or destroy one's life. Activities like taking life, making curse or making poison can be more effective in this day, since this is Nyengenambu. It is inauspicious for partying among friends and relatives or party for seeking new relationships. Doing offering to Naga is also a bad day, as it is Ludok. But day itself can be good for people who are born under the animal sign dragon. And it is a bad day for doing laying foundation for new monasteries or temples and visiting for ill people. 10th of January 2011, day Monday, and 6th lunar day of 11th month. The elemental combination is fire water, which is bad combination and brings death, unfavorable for peaceful undertakings, but negative activities such as killing, concocting poisons and cursing will be forceful or more effective. Since it is Kargenamgu, so avoid any kind of construction works like renovation of house or laying foundations. This day is best day for people who are born under dog or for sheep. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channels at same time. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। आज 3 विषय पर आपको के सामने मैं बात बताना चाहता हूँ। आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहला बात में, जैसे हम धर्म बोलते हैं ना, धर्म, तो जो धर्म की बात करते हैं उसमें तरह तरह के धर्म होता है। अब अगर मैं आपके सामने में उदाहरण दें तो जैसे मनोधर्म कहा जाता है, मनोधर्म, मनोधर्म ये एक जाति से जुड़ा हुआ एक धर्म है। जैसे हम मानव जाति में, प्रजाति में हम जन्म लेते हैं तो हम मनोधर्म को पालन करना होता है, और उसी मनोव जाति में फिर विभिन्न जाति फिर अंदर में हो सकता है। उसमें जैसे कुल धर्म, जैसे कुल धर्म क्या है, जैसे राजाओं के कुल में अगर आप जन्म लेते हो तो कहेंगे ना, तुम तो राजकुमार हो और राज परिवार के धर्म को खराब मत करो, तो इसलिए तुमको धर्म को पालन करना है, कहते हैं ना। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के धर्म के बात आते हैं। और अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, और जैसे प्रैक्टिस की बात होता है, जैसे बुद्धिज्म एक धर्म की बात करते हैं, जैसे हिंदुइज्म एक धर्म की बात करते हैं, जैसे जैन, क्रिश्चियन या ईसाई जो भी है, जिसको भी धर्म कहा जाता है, वो धर्म जो है थोड़ा भिन्न है, जो कि आम तौर पर हम धर्म के शब्द को यूज करते हैं।
अब वो जो धर्म की बात करते हैं तो उसमें जिसे रिलीजन कहा जाता है, वो धर्म थोड़ा सा भिन्नता होगा, तो उसको पहले आपको समझना है। जैसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध तो जिन्होंने इस धर्म को हमें दिखाया है वो भगवान बुद्ध जी हैं, तो उनके मार्ग और बुद्धत्व प्राप्ति करने का एक हमें दिशा जिसे होते हैं, इसलिए हम बौद्ध धर्म कहते हैं। अब उसी बुद्धत्व के जो हमारे लक्ष्य उसका सब जोड़ करके धर्म के जब बात कहते हैं, तो ये धर्म का अर्थ क्या होना चाहिए? पहला तो ये समझ लीजिए, ये धर्म जो जाति धर्म वाला धर्म की मीनिंग नहीं है। जैसे मानव धर्म बोलते हैं, उस धर्म से भी भिन्न है। तो अभी जब ये धर्म की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्षय कहते हैं, क्षय अपने भाषा में क्षय, तो उस क्षय का धर्म का अर्थ होता है आपको, जैसे कि कहीं पहाड़ के कहीं खड्डे हैं या दोनों तरफ खड्डे हैं, बीच से मान लीजिए आपका एक पुल जैसे बने हुए हैं, तो आप पुल पर जब चलेंगे तो पुल में आपके लिए क्या काम करते हैं? तो दोनों खड्डे में दायां तरफ और बायां तरफ, दोनों तरफ खड्डे में आपको ना गिरना दे करके आपको उठा के रखते हैं। वो कौन काम करते हैं? वो पुल जो आपको सहायता करते हैं। तो उसी तरह से हम इस संसार के दो तरफ खड्डे जहां पे हम गिर सकते हैं, उस दो खड्डे में नहीं गिरने दे करके आपको होल्ड करके रखते हैं, जिसको हम जिम्पा कहते हैं अपना भाषा में। जिम्पा मतलब उसको बचा के रखने वाला, और इंग्लिश में कहें तो होल्ड, जिसको उठा के रखते हैं। तो उसको कहते हैं क्षय धर्म। अब जैसे दो खड्डे में नहीं गिरने दे करके आपको बचाते हैं पुल में, तो उसी तरह से आपको होल्ड करने के लिए, दोनों खड्डे में नहीं गिरने के लिए होल्ड करने का जो है शक्ति किसका पास होता है? आपके बदन में नहीं होता है, बदन ने होल्ड नहीं करना है। केवल होल्ड जो कर रहा है वो मन के माध्यम से करना होता है। तो इसीलिए धर्म की बात जब करने लगेगा तो एक धर्म जो कि मन को थोड़ा टर्न करने वाला है ना, मतलब माइंड को बदलने वाला एक मेथड्स है। क्योंकि माइंड जब बदलते हैं तो दोनों खड्डे में नहीं गिरते हैं। अभी जो आज तक हम संसार के दोनों खड्डे में हम क्यों फंस रहे हैं? इसलिए फंसते हैं कि हमारे मन की सोच जो है गलत होते हैं। जैसे हमारे मन की सोच गलत भावनाओं से भरे हुए हैं और अज्ञान से प्रभावित है, और उसके कारण हम गुस्से होते हैं और लोभ हो जाते हैं, और क्या क्या मन में ये सब भावना जग जाते हैं। तो उसके कारण फिर हम कार्य में गलत कार्य करते हैं। तो जब गलत कार्य करने लगते हैं तो फिर खड्डे में चला जाता है ना।
अब उस खड्डे में से बचने के लिए कैसा बचेगा? तो वो खड्डे से तभी बचेगा आपके माइंड बदले, आपके सोच बदले ना। इसलिए धर्म का मीनिंग जो आपको संसार के सभी खड्डों से, दोनों खड्डों से बचा के रखते हैं, जिम्बा उससे फोल्ड करके आपको गिरना नहीं दे करके रखते हैं, उसको धर्म कहलाता है। अब वो धर्म जो कहाँ से होना है, अब क्लियर हो गया ना। वो धर्म आप वस्तु से नहीं होता है, और घर से नहीं होता है, बिल्डिंग से नहीं होता है। हालांकि जैसे हमारे मंदिरों में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना हम मंदिर में जा रहा हूँ धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य में धर्म नहीं होता है। मंदिर में जाएं लेकिन तुम्हारे मन पूरा गलत भावना से भरे हुए हैं, तो क्या उससे तुम खड्डे से बचा सकते हो? नहीं। मंदिर में जाके भी मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल में तो सोच रहे हैं कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। या मंदिर में बैठा हुआ है, सोचे कि मेरे दुश्मन ने तो मुझे बहुत तरपा रहा है, वो दुश्मन जल्दी मर जाए। अगर ऐसी भावना के साथ जब आप मंदिर में रहोगे, तो फिर आपको तो होल्ड करने का बजाय वो मंदिर में जा करके तुमने गलत भावना लेकर के फिर तुम खड्डे में जाने वाले काम तो करते हो ना, वो तो खड्डे में जाने वाला काम बन गया। तो इसलिए धर्म जो है मंदिर से भी नहीं हो रहा है ना, घर से भी नहीं हो रहा है, सामग्री से भी नहीं हो रहा है। तो असली धर्म कहाँ से हो रहा है? मन से हो रहा है। तब आप इसी जब प्रैक्टिस में, परिवर्तन में, जब आपको खड्डों में नहीं गिरना दे करके, उससे बचा करके आपको होल्ड करके रखने की जब बात करते हैं, तो केवल होल्ड करके रहना ऐसा बात नहीं है। अब हो खड्डे में नहीं गिरना चाहिए, लेकिन खड्डे में नहीं गिरते हुए फिर आपको और आगे जाना है। क्योंकि आज तो तुमने कोशिश किया कि आज मैं गलत भावना में नहीं सोचूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, अब खड्डे में नहीं गिरा। आपने एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन कभी दिन फिर तुम्हारे सामने में कोई ऐसा चीज आ जाए कि एक कंडीशंस, साधन अगर आपके सामने में, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास 1000 के लिए मैं नेगोशिएट कर दिया, 1000 के लालच में मैं नहीं पड़ा, लेकिन काल तुम्हारे सामने में 1 करोड़ आ जाए तो क्या पता है? 1 करोड़ छोड़ने के लिए तो आसान नहीं है। तो उस समय क्या पता, ओ मैंने 1000 को आज लूज करेगा तो ये तो कब फिर मिलेगा पता नहीं, कम से कम इसको तो ले लेते हैं। तो इसलिए अब हमेशा हमेशा खड्डे में नहीं गिरने के लिए आपको पूरा स्थिर रह पाने के लिए एक शक्ति प्राप्ति करना होता है, जिसको हम थर्पा बोलते हैं।